Should I tell you your problem, how you can come out of it? Yes, please. I'd appreciate that. So, body doesn't work against itself, first of all. But you know, if somebody tortures you a lot, you would want to die or not? You'll say, Yes. ki, huh? Yes. So, if you reach to that point, don't you think that your body will also try to close down itself? So, Yes, right? So I have Yes. said body, even if at that point of time when it wants to shut itself down, if you give it a little hope, if you correct the risk factors in the body, it will revive. It has that capability because it is designed to live. It is designed to live. The death factor is not against life. हम सोचते हैं मृत्यु जो है जीवन के विरुद्ध है, नहीं. It's a conclusion of life. It's a concluding thing of life. So, अगर हम सोचेंगे कि मृत्यु जीवन के विरुद्ध है, ये जीवन के विरुद्ध नहीं है. So, हमारा भी इम्यूनिटी हमारे विरुद्ध नहीं होता, कभी भी नहीं होता. लेकिन अगर आप इसको कोई मौका ही नहीं दें, तो ये क्या कहेगा कि ओके, आई डोंट थिंक आई एम देयर इन द राइट स्टेट और राइट प्लेस, सो लेट मी क्लोज डाउन एंड वी विल रिवाइव इट बैक सम इन अनदर फॉर्म. वो हमेशा इसी तरीके से बंद करेगा. मृत्यु भी इसी तरीके से बंद करती है. इट डजंट किल यू, इट रिवाइंड्स बैक. सारे सेंसेस आपके इकट्ठे होने शुरू होते हैं, आउटवर्ड नहीं मूव करते, इनवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, and that's how the progression or the going forward happens. Now, IBS, very important. Your problem started when your Jఠराग्नि started becoming weak. Irritable bowel syndrome. इसको समझते हैं. Jఠराग्नि और गार्हपत्याग्नि is an umbrella under which every kind of metabolism happens in your body. So मैं आपको एक बात बताता हूं. आपका डाइजेशन जो है, your digestion is done not just by your body, but by some other cells, some bacteria, which is not of your body. So your body contains 3 times more bacteria than your body cells. आपके जो cells है ना, उससे 3 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं आपके शरीर में. तो अगर चुनाव करा लेंगे ना, इलेक्शन कराओगे, तो we can prove there is nothing called as human being, क्योंकि वो हमेशा जीतेंगे, बैक्टीरिया जीत जाएंगे. ठीक है ना? तो ये बात समझ लिए. नाउ if you imbalance this symbiotic relationship, इस relationship को अगर जैसे ही आप imbalance करेंगे, what is the first thing that you will suffer is digestive issues. Now how we are doing it? एक simple सी चीज समझ लीजिए. Now when you put natural food, organic natural food in your body, the bacteria are healthy and they do their work very, very happily. But the moment you put a chemical inside, they die. So whenever you eat a pill, they die. Whenever you take a vaccine, they die. Whenever you eat something which is not natural, processed, too much processed, and too many chemicals in it, inorganic thing, the bacteria die. So you need to replenish it very often. This used to happen in nature very easily when certain things used to ferment, and you also take that fermented inside your body. अभी तो आप सब कुछ निकाल देते हैं ना, तो कुछ चीज जो सड़ जाती थी वो ही बैक्टीरिया को रिप्लेनिश कर देती जब उसको साथ में आप खा लेते थे. Now slowly during the progression of civilization, we recognize it consciously that we need this. तो हमारे भोजन में, जो कि हमारा भोजन, जिसको दुनिया को हमने भोजन दिया, इंडिया क्रिएटेड रेसिपीज एंड gave it to the world. सारी दुनिया जो है यहां से सीख के गई, फिर कहते नहीं हमसे सीख के इंडिया में. तो हम लोग अचार बनाते थे, कंजी बनाते थे, एनीथिंग फर्मेंटेड. साउथ में बहुत फर्मेंटेड चीज इस्तेमाल करते थे खाने के अंदर. एटलीस्ट कई जगह पे साल में एक बार वो कहते हैं बासड़ा, यानी कि बासी ही खाना, तो वो रिप्लेनिश करने के लिए होता था. नाउ वी आर नॉट रिप्लेनिशिंग इट, रादर एवरी डे वी आर डिस्ट्रॉइंग द होल बैक्टीरिया. जैसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं इसको, आजकल गट माइक्रोबायोटा कहते हैं. नाम कुछ भी रख लीजिए, मगर ठीक करना आना चाहिए. पहली बात, गट माइक्रोबायोटा आप रोज खराब करेंगे
रोज खराब करेंगे, एक दिन ये रिप्लेनिश नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा। नाउ ये गट माइक्रोबायोटा आपका मेटाबॉलिज्म यानी आपके पाचन की पहली स्थिति को संभालता है। इसके कारण आपके लिवर पे भी असर आता है। लिवर जहां पे वीक हुआ, आप समझ लीजिए कि आपका पूरा डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये प्रॉब्लम जब आएगी तो कुछ लोगों को डिपेंडिंग अपॉन देयर वीकनेस इन द बॉडी, सम पीपल हैव कफ प्रकृति यानी शरीर के ऊपर के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, कई लोगों को मिडिल हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आती है पित्त प्रकृति, कई लोगों को नीचे के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आती है वात प्रकृति। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको बीच के हिस्से में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आएगा। इंटेस्टाइन में अगर रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है तो इंटेस्टाइन बहुत जल्दी एक्सपोज होगा चीजों के लिए, एसिड के लिए या कोई भी तीखी चीज के लिए, एंड इट विल गिव अ शिवर, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि नसें एक्सपोज हो जाएंगी, वहां पर टिश्यू का पूरा हेल्दी ग्रोथ नहीं होगा। इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है साहब। आप क्या, आपको जरा वो क्या कहते हैं, मतलब अंदर एंडोस्कोपी करके देखेंगे, अच्छा ये जगह खराब हुई काट के निकाल दो, नहीं और किया, नहीं वही किया, नहीं किया। करते हैं, मैं बता रहा हूं। हाँ, नया एंडोस्कोपी करते किया हैं। ना, कोलोनोस्कोपी किया ना, कुछ किया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट। तो कैन यू कम आउट ऑफ आईबीएस? बहुत आसान है कमिंग आउट ऑफ आईबीएस, बहुत आसान है। यू कैन इजिली कम आउट। यू जस्ट हैव टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक हीट इन द बॉडी। थोड़ा मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाएंगे, थोड़ा अपने कोलोन को शांति देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सुबह उठ के खाली पेट, आपको जब भी कुंभक कर रहा है कोई भी, सुबह उठ के खाली पेट थोड़ा घी लेना होता है। एक इलाज कई बीमारियों का। इट क्लेंजेस योर होल एलिमेंट्री कैनाल, इट डजंट गो इनसाइड योर बॉडी। ये कोलेस्ट्रॉल कम करेगा आपका, फैटी लिवर ठीक कर देगा। तो ऐसा कुछ चीज हम बताते हैं, सो दैट पीपल इनटू दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन स्टार्ट गेटिंग रिलीफ। स्लोली दे डू कुंभक, रिकवर द होल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गन स्ट्रेंथ एंड फंक्शन। कुंभक करें और साथ में थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। वी ऑल्सो से कि आप कुछ और भी कर सकते हैं गट माइक्रोबायोम को रिप्लेनिश करने के लिए। वी डू स्मॉलर प्रोग्राम वेयर वी, एंड इन द प्रोग्राम इटसेल्फ वी टीच यू फूड कैसे होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन टेक अ लिटिल आयुर्वेदिक सपोर्ट। So you take a little support. See, everything that you take from outside is a support, not a treatment. आपको ये समझना पड़ेगा, chemical medicine is not a treatment. It can be a support. Ayurvedic medicine are support, not a treatment. Your body, if it gets the required help, it can recover. So your body always recover. तो बाकी सब सपोर्ट है, आप सपोर्ट लीजिए, नेचुरल सपोर्ट लीजिए, फूड का सपोर्ट ले लें, आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट ले लें, रस औषधि का सपोर्ट ले लें, और दूसरी चीजों का सपोर्ट लें, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी तो आपका बॉडी ही बढ़ाएगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कुंभक कीजिए, बाकी सपोर्ट लीजिए, यू विल सी वेरी सून योर डाइजेस्टिव इश्यू। हमारे पास में बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत एग्जांपल हैं जहां के ऐसे इश्यूज से लोग ऐसे निकल गए, फिर कहते हैं कि हमने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, पहले ज्वाइन कर लेते तो और भी अच्छी लाइफ हो जाती।